students, hope you all are doing well. Today we will continue our second chapter 1.2, Are You a Vegetarian? So already we have discussed about 1.5 pages from this chapter, and today we will continue the further part of this chapter. So I think already it's very clear that what is given in this chapter, इस chapter में क्या दिया गया है. So I think it's quite crystal clear now. It is focused that we should be eating a lot of vegetables, fruits. हमें वेजिटेरियन डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना है rather than नॉन वेज. हमें ये श्योर करना है कि we eat lot of fruits and vegetables. And behind this a lot of reasons are given here that why we should be a vegetarian. इसमें बहुत सारे reasons दिए हुए हैं. A lot of people give their own belief. हर लोगों का अपना अपना belief है. Some say that it's a religious belief, and some say that it is good for our ecological reason. इसको देते हैं कि it is very good for the nature. ये इससे nature की harm नहीं होती है. And some say that it is very easy to produce. Okay, क्योंकि mother nature जो है वो काफ़ी easy way में fruits and vegetables को yield करती है. And also it is said that कि nowadays many medical men advise people to cut down on fat, salt, sugar. Okay, and they recommend to eat lot of fruits, vegetables. वो recommend करते हैं कि हमें ज़्यादा veg पे ध्यान देना है because it is good for digestion also. And also it is said that this vegetarian diet are quite cheaper than non-veg. Okay, everybody can afford it. हर कोई ये जो vegetarian diet है उसको हर कोई afford कर सकते हैं, but non-veg everybody cannot afford it. So these are the things we saw in page number 11, and in page number 12 में हमने देखा कि nowadays जो rich countries है वहाँ पे एक tremendous increase हो गया है, increase in demand of what? Meat का काफ़ी ज़्यादा demand है, and this leads to a lot of problems like deforestation. हम देख सकते हैं forest is being cleared out, और वहाँ पे क्या होता है लाइफ स्टॉक को वो लोग उगाते हैं, लाइफ स्टॉक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. ओके, ग्रोइंग ऑफ रियरिंग ऑफ एनिमल्स. ओके, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग ट्रीज दे कट डाउन ट्रीज एंड दे रियर एनिमल्स. तो ये सब हमने देखा पेज नंबर 12 में. एंड ऑल्सो वी सॉ दैट इफ़ वी फोकस ऑन मीट, अगर हम मीट को अगर ध्यान में रखते हैं तो इट needs a lot of grain and lot of water to feed them. Okay, हमने देखा सेकेंड पैराग्राफ में कि to produce 1 kilogram of animal meat we need 7 kilogram of grain. Okay, so it's not a small amount, it's a huge amount, and to grow 7 kilogram of grain we are using 7,000 liters of water. So इससे क्या होगा कि अगर हम वेजिटेरियन पे ध्यान देते हैं तो हमारा जो है वाटर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेव होगा. एंड नेक्स्ट वी सॉ दैट इट इज़ ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑल्सो. ओके, सोर्स ऑफ पोल्यूशन कैसे है? जो फार्म एनिमल्स है वो यूनाइटेड स्टेट्स में वो 130 टाइम्स ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना वहाँ का पीपल प्रोड्यूस करता है. And there is a state in USA known Utah. It produce more sewage than the whole city of Los Angeles. यानी कि लॉस एंजल्स में जितने लोग रहते हैं वो जितना सीवेज प्रोड्यूस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा एक फार्म से प्रोड्यूस होता है वेस्ट. सो इन शॉर्ट ऑल दिस थिंग्स पोल्यूट जो मेराइन लाइफ है उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है. ओके, ड्रिंकिंग वाटर भी पोल्यूट होता है. मैनी क्रिएचर्स दे डाई. ओके, सो ये हमारा बैकग्राउंड था. टुडे वी विल सी फर्दर. यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, पेज नंबर 12 लास्ट सेकेंड पैराग्राफ. ईटिंग अ लॉट ऑफ मीट कैन लीड टू ए नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. यानी कि अगर हम ज़्यादा मीट खाते हैं तो इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ. वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे प्रभाव डालता है. सच एज increased obesity. What is obesity? You can see downside, a state of being fat. यानी कि हम क्या हो जाएंगे, बल्की हो जाएंगे, मोटा हो जाएंगे. हार्ट डिजीज़, दिल का बीमारी हो सकता है. वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैंसर हमें अटैक कर सकता है. कैंसर हमें निमंत्रण दे सकता है. सो इसे हमें दूर ही रहना चाहिए. The various chemicals feed to livestock these days
are also a matter of serious concern. Now, what is livestock? Livestock क्या है? Animals that are kept on a farm, ठीक है, जिसको हम फार्म में रखते हैं, उसको खिलाते हैं और उसको बड़ा करते हैं, जैसे काउस हो गए, पिग्स हो गए, शीप एक्सेट्रा. तो यहाँ पे क्या है, द वेरियस केमिकल्स फेड मीन्स उसको हम खिलाते हैं, लाइफ स्टॉक यानी जानवरों को. दिस डेज आर ऑल्सो ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न. एक व्हाट इज कंसर्न? ए फीलिंग ऑफ वरी, चिंताजनक बात है आज के समय में. द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग मीट फ्रॉम दिस एनिमल्स कैन बी टेरेबल. तो अगर हम मीट को कंटिन्यूस अगर हम लॉन्ग टर्म तक खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो थोड़ी समय के बाद वो हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट डालेगा ही डालेगा. सो ये काफ़ी ख़तरनाक है. दिस एनिमल्स कैन बी टेरिबल. तो ये हमारे इफेक्ट पे भी प्रभाव डाल सकता है. सम पीपल आर्ग्यू. व्हाट इज़ आर्ग्यू? आर्ग्यू मीन्स क्या होता है? टू से समथिंग ऑफन एंग्रीली दैट शोज यू डू नॉट अग्री विद समबडी और समथिंग. हम किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं. तो सम पीपल आर्ग्यू दैट वेजिटेरियन फूड कैन बी सॉर्ट ऑफ प्रोटीन. कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वेजिटेरियन जो फूड होता है उसमें प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है. प्लेंटी ऑफ प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सच आर्टिकल्स. बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स है जिसको खाने से बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं, जैसे पीस, बीन्स, नट्स, सीड्स, पल्सेस, बहुत सारे दाल, बहुत सारे सीरियल्स, अनाज, सोया, मिल्क प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं. तो ये सब चीज़ को खाने से वी गेट लॉट ऑफ प्रोटीन्स. तो ये कहना बिल्कुल गलत है. इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग दैट इफ़ वी आर ईटिंग वेजिटेरियन, if we are eating only vegetables and fruits, we don't get a proper amount of proteins, vitamins, minerals. This is absolutely wrong. ये हम नहीं कह सकते हैं. Now we will see in page number 13 what is given in page number 13. Vegetarians have invented for themselves high protein vegetable food such as peanut butter, cornflakes and म्यूसली. तो यहाँ पे जो वेजिटेरियंस हैं वो इन्वेंट किया. व्हाट इज़ इन्वेंट? टू थिंक ऑफ और मेक समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. वो किसी चीज़ का जब खोज करते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं. वो आई हैव इन्वेंटेड दिस. तो वेजिटेरियंस जो लोग हैं उन्होंने क्या इन्वेंट किया है? हाई प्रोटीन वेजिटेबल फूड. ऐसा वेजिटेबल फूड जिसमें प्रोटीन की मात्रा जो है इट्स वेरी हाई. अब कैसा है? जैसे मूंगफली हो गया, बटर हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ओके, म्यूजली हो गया. तो ऑल म्यूजली का मीनिंग यहाँ पे दिया मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स, ओके, नॉट ड्राइड फ्रूट एक्सेट्रा, सर्व विद मिल्क एंड ईटन फॉर ब्रेकफास्ट. मॉर्निंग में मम्मा क्या करती है, बच्चों को बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके और उसको काट के पीस में एंड सी यूज टू मिक्स विद द मिल्क और उसको मिल्क के साथ पिलाया जाता है. तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच बेनिफिशियल या वेरी, हम कह सकते हैं इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड इट्स ए हाई प्रोटीन लेवल का वो होता है, जिससे हमें हमारे बॉडी को काफ़ी हाई प्रोटीन मिलता है. नेक्स्ट पैराग्राफ है. इन फैक्ट वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स आर रिच इन ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, वेजिटेरियन जो प्रोडक्ट होते हैं, जो भी हम वेजिटेबल से बनता है, उसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. जैसे लीफी एंड रूट वेजिटेबल्स प्रोवाइड विटामिन्स. जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उससे हम विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स that help to keep our digestion working properly. Okay, ध्यान देने वाली बात है. You have to note this. It helps in our body. How? For proper digestion. जो हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, अगर हम खाते हैं फाइबर युक्त भोजन खाते हैं या लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, तो इससे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी प्रॉपर रहता है. हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है. वेजिटेरियन कैन ऑब्टेन आयरन फ्रॉम ड्राइड फ्रूट्स. ओके, आयरन जो है वो हम कहाँ से ले सकते हैं? ड्राई फ्रूट से ले सकते हैं, जैसे पल्सेस से ले सकते हैं, ओट्स से ले सकते हैं. ओट्स मतलब हम इसको कहते हैं जई, एक तरह का ये सीरियल्स ग्रेन में आता है. नट से ले सकते हैं, ब्राउन राइस से ले सकते हैं. ओके, तो ये सब यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है. हम किससे हम आयरन को ऑब्टेन कर सकते हैं? दैट मीन्स वी कैन गेट आयरन फ्रॉम ऑल दिस प्रोडक्ट्स. दे कैन ऑब्टेन कैल्शियम फ्रॉम चीज़. कैल्शियम हम कहाँ से ले सकते हैं? जो हमारे बॉडी के लिए, टीथ के लिए, बोन्स के लिए काफ़ी अच्छा है. चीज़, नट्स, सेसमी सीड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सोया. तो कैल्शियम जो है
हम ये चीज़ नट्स से, सेसमी से, सेसमी क्या है, यू कैन सी डाउन साइड मीनिंग दिया हुआ सेसमी, एक ट्रॉपिकल प्लांट ग्रोन फॉर इट्स सीड्स एंड देयर ऑयल दैट इज़ यूज इन कुकिंग, ठीक है, जिसका बीज भी हम खाते हैं और उसका जो बीज है कुकिंग ऑयल में ऐसे यूज़ होता है, तो उससे हम कैल्शियम ले सकते हैं। एंड सोया, पोटैटोज कंटेन स्टार्च विच द बॉडी कैन बर्न अप टू मेक एनर्जी। पोटैटो में क्या पाया जाता है, वो भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, उसमें काफ़ी मात्रा में स्टार्च पाए जाते हैं, ओके, जो हमें एनर्जी प्रदान करता है हमारे बॉडी को। Do you know the elephant is the biggest and the strongest of land animals and it is vegetarian. It is a very interesting thing. The सबसे बड़ा जो लैंड एनिमल, द बिगेस्ट लैंड एनिमल, बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लैंड एनिमल जो माना जाता है इस धरती पे, वो है हाथी। इट्स एन एलिफेंट एंड यू नो इट्स ए वेजिटेरियन। वो क्या खाता है, ओनली बैम्बू लीफ, ठीक है, पेड़ के पत्ते, ओके, ये ओनली वेजिटेरियन खाता है। फिर भी वो इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना बिगेस्ट जानवर उसको कहा जाता है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी कहा जाता है, ओके। इट किल्स नो एनिमल फॉर इट्स फूड, ठीक है, और वो किसी दूसरे जीव जंतु को नहीं मारता है अपने भूख को मिटाने के लिए, ओके। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हाथी जैसा जानवर वो कभी दूसरे जानवर को नहीं मारता है एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन वेजिटेरियन डाइट, then also it is the biggest and strongest animal on land. So students, I hope it's very clear for you. ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपको कि हमें किस डाइट पे ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए, या वेज पे या नॉन वेज पे, ओके। तो इस लेसन में हमें वेज पे यानी कि वेजिटेरियन होने पे ज़्यादा फोकस किया गया है, बिकॉज इट इज़ वेरी ओवरऑल वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, एंड ऑल्सो इकोलॉजिकल रीज़न दिया हुआ है, ये नेचर के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड ऑल्सो जो पोल्यूशंस जो भी बढ़ रहे हैं, तो फार्म एनिमल्स से काफ़ी वेस्ट निकलता है, तो उससे नेचर को कहीं ना कहीं काफ़ी हानि हो रही है। सो इन शॉर्ट वी हैव टू डिपेंड ऑन नेचर, हमें नेचर पे डिपेंड रखना है, तो उससे हमें नेचर के साथ मिलजुल करके हमें आगे बढ़ना है, एंड वी शुड ट्राई टू ईट एज मच एज ओनली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और उसी पे हमें डिपेंड होना है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक द चैप्टर इज़ क्रिस्टल क्लियर फॉर यू, so I'll stop till here. In my next video we will discuss regarding the question answers given here. You can go through page number 13 and 14 and try to find the answers if you can. So that's all for today. Have a great day. Thank you.